as you know that एक मिनट रिकॉर्ड बस एक मिनट प्लीज yes as you know that we are discussing the FSI, that is the Food Safety and Standard Authority of India. In the previous year question paper of DULB, three types of questions have been asked regarding this topic. One was that what principles should be followed by the FSI, write short note on the FSI, write functions and duties of the FSI. As you know that this part regarding the establishment I have already discussed. Regarding the object introductions, we have already completed. Regarding member, 23 members, how they are appointed, we have already discussed. We have already discussed preamble about the FSI. Section 3, food safety, food authority. What is the meaning of food authority? Food authority means FSI, as established under section 4. Central government established the FSI, which will be legal body, legal persons in the light of the jurisprudence, and he can sue and against whom suit can be filed. Regarding the constitution, how many members? Total 23 members. 23 members will be divided into three parts. First category that chairperson, second category that 7 ex officio member, and third category that 15 members. This is the chairperson, and 15 members are appointed on the recommendation of the selection committee. 7 members are ex officio. Ex officio means they are, at least minimum qualification is that joint secretary, and they belong from the seven ministry of whose government, central or state, central government. These ministries are like the agriculture, commerce, law, food, health, micro, consumer, like this. Now I have to start duties and functions of the food authority. This is a very important questions which was asked near about 10 marks was the questions. 10 marks का था कि 20 marks का था, एक मिनट देख देता हूँ. Yes, 10 marks question was that regarding duties and functions of this act. 10 marks questions, as you know that we have to discuss regarding 10 marks. And once you see the bare provision of section 16, this is the very lengthy sections, and that's why, as you know that duties and function of FSI have been discussed under the Food Safety and Standard Act, as well as under the Food Safety and Standard Rules 2011. इनके बारे में ड्यूटीज एंड फंक्शन का इस एक्ट में भी डिस्कस किया गया है, और जो रूल बनाया गया है वहां पर भी डिस्कस किया गया है. बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द रूल, because here whatever provisions regarding the duties and functions have been mentioned under this particular act, that is the sufficient. That's why I am not going to discuss that rule. If you want to know something extra, you can read rules yourself, but as per the semester exam, as per the basic knowledge, section 16 is sufficient for your knowledge as well as semester exams. One is that what is the duties and functions. What two is that duties and functions of the food authority. What is the duties as well as the functions of the food authority. In this class, in this section, total how many sections? How many class? Total 6 class. How many class? Total 6 class which have been mentioned. Under the 6 class, there are sub class. Under the 6 classes, under few class there are some sub class. अब यहाँ पर हम क्लास देख रहे हैं, 1 class, 2 class, but here A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, these are the sub class. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, these are the sub class. Section 3 is the class. Again sub class A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, that is the N. That is the class. Regarding the subclass, regarding the class, section 4, regarding subclass A, B, C, and D. Regarding the class 5, there is no subclass. Regarding class 6, there is no subclass.
It means section 16 can be divided into two parts. First parts which does not first part which do not contains classes. Second class which contains the subclass. मतलब हम कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि सेक्शन 16 को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा. पहले पार्ट में क्लास 1, क्लास 5, क्लास 6 रखूंगा. Class 1, class 5, class 6 does not contain subclass. In the second category, I will put class 2, 4, 2, 3 and 4 which contains the subclass. It will be very helpful to remember as you know that. As you know that if you see the Bayret, near about how many words? More than 1000 words. More than 1000 words talks about duties and functions of the food authority. Is it possible to remember word by one? No, it is not possible to remember by one word by word, but it is possible to remember main idea, main gist of section 16. How to remember section 16? This is the big questions. Because as you know that if you do not remember section 16, you can't write in the proper manner in the semester exam. एक मैं एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. एक उत्तर प्रदेश का एक यूपी जुडिशरी में एक लोकल लॉ आता है. एक ने 7 लोकल आते हैं. 7 लोकल लॉ में एक क्वेश्चन उसका रहता है उत्तर यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट का है. उसे यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2016 का है. उसका एक टॉपिक बनता है कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज. उसका सेक्शन 8 है. सेक्शन 8 में इस तरह का सेक्शन 8 हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत साल हो गए, 5-6 साल हो गए, लेकिन मेरा जहां तक अंडरस्टैंडिंग है कि सेक्शन 8 में और यम में डिफाइन किया गया. सेक्शन 8 में उसकी ड्यूटी लिखी हुई है. अब हुआ क्या कि उसकी ड्यूटी भी कम से कम 50 तरह की ड्यूटी है. उसकी ड्यूटी कितनी है? कम से कम 50 तरह की ड्यूटी है. अब हमारे दिमाग में क्या चलता है, सबको मालूम है, एवरीवन नोज दैट क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. रिगार्डिंग द competitive exam, especially in the judiciary exam, everyone knows what questions shall be asked. Only difference is that regarding how to write in the semester exam. Only method and your writing skills, that is your language, these are the important. But regarding the question, everyone knows that question will be asked. But I did not remember word by word. Yeah, I did not try to remember. I applied my mind and said that okay, I can write these are the duties of the municipality to maintain the like this. What happened in the competitive exam? Once I started to write, after writing 4 or 5 lines, I stopped myself because I was not in a position to write something. क्यों? क्योंकि जब माइंड अप्लाई करके रखते हो तो जब प्रेशर आता है तो प्रेशर में 2, 4, 5 फैक्ट ही याद आ पाते हैं, 50 फैक्ट याद नहीं आ पाते हैं. लेकिन जो उसको रटने का जो प्रयास करते हो, रिमेम्बर करने का प्रयास करते हो, वो तुम्हें वहां समथिंग डिफरेंट कर देता है. इसीलिए लोकल लॉ के जहां तक बात है, यूपी जुडिशरी में सारे बच्चे का हाथ जो है 1 घंटे के बाद, 1.25 घंटे के बाद कोई लिख ही नहीं पाता है. वहीं जो 3 घंटा लिख देता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है. तो वही कंडीशन सेक्शन 16 में है. हाउ टू रिमेम्बर? I am going to give some idea how to remember section 16, but it is my request to remember as far as possible. Functions of the FSI, we can divide it into some parts. First part is that regarding the giving the advice to the central government, state government, like this. The first function of the FSI is that to give the advice. Here I am not reading the Bayer Act. I will discuss Bayer Act after 5 minutes. I am giving you some idea how to remember this particular section, because 10 marks questions will be asked from this particular section. How to classify the whole provisions of the section 16. First duty of the FSI is that about the FSI. FSI is the highest body. FSI is the highest body to implement provisions of the Food Safety and Standard Act 2006. The first duty of the FSI, and FSI is the statutory body, FSI is the autonomous body, FSI is a body which performs its work under the Ministry of Health and Public Welfare. And the Ministry of Health and Public Welfare, it performs its work. The first duty of this particular body is that to give the advice to whom? To the central government, to the state government, to international bodies.
point is that first duty is that to give the advice. On what matter FSI can give the advice? As you know that, suppose that government wants to make some rules. Government wants to make some rule regarding the food, foods, whatever might be that. From where government will get the informations? What should be amended? What should be new? What should be inserted? What should be substituted? Because as you know that Prime Minister is a person who perform his work, but on several times he perform his work with the advice and consultation with the ministers. And from where ministers get the information? Ministers get the information from the autonomous body. From where the autonomous body get the information? Autonomous body get the information through the officers who is implementing that particular law. And in the last, who is the person who can give the best feedback to the government? Public is the person, public is that unit, public is that person who has a best knowledge regarding the ground reality of any law. किसी भी लॉ का सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ फॉल्ट है, कैसे फॉल्ट है, पब्लिक से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि पब्लिक ही उसका क्या होती है, सफरर भी होती है और पब्लिक ही उसका बेनिफिट लेती है। तो इस तरह के पॉइंट को लेकर के हमेशा इस पॉइंट को लेकर के फाइनल जो फीडबैक आता है वो पब्लिक से ही आता है। That is the point. The first point is that to give the advice to the central and state government on what points, when the government is going to frame a policy, when the government is going to amend the law, when the government is going to make contact with any companies, or when the government is going to enter into any agreement with a foreign countries. मान लीजिए कोरोना का टाइम है, भारत सरकार ने ड्यूरिंग द कोरोना टाइम परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिया वाज बेस्ट। अलग बात है कि अगर फेसबुक को लिखना हो तो लिख देंगे कि वर्स्ट है, लेकिन व्हाट इज द रियलिटी इज दैट परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस। There are some points on which we may criticize, but overall this is the point. What happened during the corona period, during this pandemic? Government entered into an agreement for supplying of some rice goods to the other countries who were facing acute problem of the जहाँ भूखमरी रहती है, acute shortage of the grains like this in that countries. In that country, government, when several people started to mark questions, why the government is sending the grains to the other countries? This is a bad habit of the country. Government should avoid. But what was the reality? What was the reply of the government? Government replied that we have sufficient grains. We have sufficient grains, sufficient foods for our country, and even in any drought or any such type of pandemic, even without productions, we can supply the foods for our citizens up to the 3 years. गवर्नमेंट ने कही कि अगर इस तरह का पेंडेमिक 1 नहीं 2-3 साल तक भी रह जाए, कंटिन्यू 3 साल भी रह जाए, तो भी हम अपने सिटीजन्स को फूड जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जब हमारे मामले में इतना सफिशिएंट फूड है तो हम उसको क्यों बाकी कंट्री को सप्लाई क्यों ना करें जो यहाँ पे एक्यूट प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो इस तरह का, तो फ्रॉम वेयर हु विल से दैट वी हैव सफिशिएंट फूड? ओके, गवर्नमेंट इज स्पीकिंग, but behind government who is working? This is the FSI. Some other body is giving the advice to the government. FSI can give the advice, yes Mr. Government, we have sufficient food, we have such stocks like this normal requirement of the grains is up to this, we can calculate up to the 3 years, we have sufficient amount of the grains, you can supply this. Even during the pandemic time and during today, I was listening the honorable Mr. Modi ji, he told that government has supplied 80 crores people, मतलब government has supplied grains to 80 crores peoples। मतलब कहने का मतलब था इस पेंडेमिक के दौरान हमने 80 करोड़ पॉपुलेशन को ग्रेन सप्लाई किया है, फूड डिलीवरी किया है।
अब ग्राउंड रियलिटी पर क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी में तो बहुत सारी चीजें होती है कि पॉलिसी बनने से और रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है. दैट इज द डिफरेंट थिंग्स. दैट वाज द पॉइंट. So my point is that first point is that FSI, purpose of the FSI can give the advice to the central government and state government. This is the first function of the FSI. Second function of the FSI is that to regulate the standards, to regulate the standards of the fruits, of the foods. And it, because once you read the name of the act is that the food safety, it means safety of food is the first condition. Food safety and standards, food safety and standards, okay, नाम हुआ इसका, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, क्या नाम है इसका, एक ठीक है क्या, फूड सेफ्टी एंड, हाँ फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी एक्ट. हम भी भौकाली आदमी घबरा जाते हैं जहाँ रहता हूँ. गाड़ी चल गई तो चल गई, घबरा जाती है तो घबरा जाती है. नहीं, कॉन्फिडेंस है भाई, कुछ भी बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, बाकी तो चलता ही रहता है. बस सेकेंड पॉइंट इज दैट एज यू नो दैट second function of the government FSI is that to provide the wholesome food for the country. Second priority, wholesome food, मतलब safety food as well as wholesome food, nutritious foods. That's why FSI FSI has made several types of rule and regulations. Several types of rule and regulation. For the example, labeling of details on the food packets. Labeling of the details on the food packets. Suppose that you are going to purchase the milk, 1 liter milk, half liter, whatever you, as the case may be. You can read whole details about the contents of that milk. आपको उस मिल्क से पढ़कर पता चल जाएगा उस पैकेट पे जो लिखा हुआ है कि इसमें, मुझे नहीं मालूम है, साइंस का मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ कितने इसमें कितना मतलब कि नाइट्रोजन होगा या नाइट्रोजन कह रहा हूँ, जो भी होगा, मतलब पूरा डिटेल से होता है, उसमें सब कुछ रहता है, जो भी डिटेल रहता है वहाँ पैकेट पे लिखा रहता है कि भाई इस चीज को खाने से आपको इतने मात्रा में ये क्वांटिटी है आपको मिलेगा, ये आपका न्यूट्रिशन का ये डिटेल है, सब कुछ, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन ऑन द डिटेल. Why everything has been mentioned on the detail? Why expiry date has been mentioned on the detail? Only and only purpose is that food safety as well as giving the security to the consumer. Otherwise, what would be happen in the packet? They will contain something and they will not give the detail. Tomorrow, consumer cannot file a case in the court because he will say that Millards, I contain the chips in that packet, but I am not claiming that what is the quality, what is the nutrition, what is the other point in that matters. It means suppose that you are purchasing the chips of 10 rupees, everything has been mentioned. जैसे होता है ना कि everything has been mentioned, and suppose that in the laboratory test they fail to provide that content, you can go to the consumer forum, you can file the case. So my point is that second point is that labeling on the food packet, providing rule and regulation for the food safety, like these things. Third point is that थर्ड पॉइंट, एक तो हो गया गवर्नमेंट को एडवाइस देना, दूसरा हो गया कि फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो पैकेट वैकेट आते हैं सबका लेबलिंग करना, सबके बारे में डिटेल में लिखना. एक्सपायरी डेट अवे बिफोर सम डेज FSI issued a guidelines and guidelines was that even the street जो मिठाई उठाई बेचते हैं, जो स्ट्रीट शॉप्स जो हैं, they are also bound to print out expiry date of that sweets. मतलब गाइडलाइन अभी हाल ही में इशू हो गई थी कि स्वीट्स का जो पैकेट हम खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान से, तो उस पर क्या होता है, एक्सपायरी डेट का नहीं रहता है. अब गुलाब जामुन बना दिया हो, अब गुलाब जामुन 1 महीने तक नहीं बिका तो अब 1 महीने बाद जाएंगे खरीदने के लिए तो भी उस पर बेच देगा, आप कहेगा ही नहीं कि हमने 1 महीना पहले का बना रखा है. कुछ दिन पहले क्या हुआ कि हम टमाटर खरीदने गए तो 2 कैटेगरी का टमाटर रखा हुआ था. एक टमाटर रखा हुआ था 25 रुपया केजी का, एक रखा हुआ था 50 रुपया केजी का.
25 ने 30 रुपए kg का, एक रखा हुआ था 50 kg का। तो हमारा तो ठीक है कि हम खरीदते नहीं है, खरीदते हैं तो क्वालिटी को थोड़ा देख कर ही खरीदते हैं। तो इसमें एक आदमी तुरंत और आ गया, कहा कि भाई इसको 20 रुपए किलो दे दो। वो सड़ा हुआ टमाटर था पूरी तरह से, और कह रहा है कि वो ये दे दो, क्या बोलते, 20 रुपए किलो दे दो। तो दुकानदार कह रहा है, वो टमाटर वाला कह रहा है, वो जो था ना चाट वाला, चाट वाला हमें 25 रुपए किलो दे रहा था, लेकिन हमने उसको दिया नहीं, हम 30 रुपए किलो देंगे। हमारे कहने का मतलब है कि जो सर सामान मार्केट में जो खाते पीते हो, वो थोड़ा सोच समझ कर खाया करो, जितना सारा सामान रहता है उसी को डाल करके वो बना देता है सब। तो मैंने पूछ लिया तो कहा कि अरे भाई साहब ऐसे ही चलते रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारी कोई गलती नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है, चलो भाई छोटा व्यापारी था, कोई हम वो नहीं है, उसका अपना मैटर है। तो इसीलिए स्वीट के मैटर में एक्सपायरी डेट लिखना मैंडेटरी कर दिया था, कि आपको लिखना पड़ेगा कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ और इसका यूज कितने तारीख से पहले का हो सकता है। तो ये फसाई का रूल रेगुलेशन आया हुआ था। तो तीसरा कैटेगरी है कि लेबोरेटरी को स्टेब्लिश कराना और लेबोरेटरी में उसको चेक कराना, ताकि अगर कोई भी इसका वायलेशन कर रहा है, कोई जो गाइडलाइन है, उसके मामले में उसको पनिश किया जा सके। एक मैं आपको घटना बता दे रहा हूँ, अपने पार्थ ने भी रिमाइंड मुझे कराया था 2 दिन पहले। एक नेस्ले कंपनी का जो था मैगी था, पता नहीं कौन सी मैगी था, जो बता रहा था, उसका क्या हुआ था, जब उसका चेक हुआ तो पूरा उसका क्वालिटी खराब पाया गया, उसको कई जगह बैन कर दिया गया। तो उस मैगी वाली कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और आपके सिलेबस में एक केस है अच्युतानंद, हाँ अच्युतानंद तीरथ वर्सेस समथिंग का जो केस है, उस केस में क्या हुआ था, उस केस तीसरे पॉइंट पर ही है। हुआ क्या कि फसाई का काम ये है कि सैंपलिंग लेकर के टेस्ट कराना, और टेस्ट में जो कंपनियां फेल होती है उनके खिलाफ एक्शन लेना, उनके खिलाफ सजा भी होती है। तो फसाई ने क्या किया था 2014-15 के आसपास में, पूरे भारत से जो दूध का पैकेट होता है उसका सैंपलिंग कराया, मतलब सैंपल लेकर के टेस्ट कराया। तो वो पाया गया कि पूरे भारत में दिल्ली एक ऐसा राज्य था जहां 100 में 50 टेस्ट सैंपल हुए थे, मतलब 50% सैंपलिंग पास हुई थी। 50% सैंपलिंग पास होने का मतलब ये हुआ था कि मान लीजिए कि 0.5% जो है क्वालिटेटिव है और 0.5% जो क्वालिटेटिव नहीं है। मतलब कि आप 2 पैकेट अगर खरीद कर लाते हैं दूध का, तो मान के चलिए कि आप 1 पैकेट दूध जो है आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, सिर्फ 1 पैकेट दूध का ही न्यूट्रिशन मिल रहा है। बाकी आप क्या कर रहे हैं, बाकी आप यूरिया पी रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन जब दिल्ली को छोड़ दो, बाकी राज्यों में टेस्टिंग हुआ था सैंपलिंग का, तो उसमें 100 में 100% पाया गया। इस सारे के सारे दूध जो भारत में बिक रहे थे वो सारे मिलावटी ही बिक रहे थे, कहीं कोई क्वालिटी नहीं है। इसीलिए लोग हमेशा भी, कई लोग कहते भी हैं कि आप पैकेट का दूध पीते हो तो एक तरह से आप जहर का ही दूध पीते हो। अगर आपको नहीं भरोसा है, भरोसा देखो हम लोग भी पैकेट का ही पीते हैं भाई, तो कुछ है ही नहीं, तो बच्चा भी पैकेट का ही पीता है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप एक बार उठा करके देखना कि भारत में, गूगल पे डालना कि भारत में दूध का प्रोडक्शन कितना होता है और यहाँ पे मतलब यहाँ की इसकी मतलब खपत कितनी होती है, मतलब प्रोडक्शन और सप्लाई का अंतर देखना। भारत में प्रोडक्शन अगर मान लीजिए कि 20% का है, तो सप्लाई यहाँ पे 40% हो रहा है। आप समझिए कि 20% जो एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है, अब वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, ये आप ही जाने, ऐसे होता है। अभी एक हमने देखा था कि बाबा रामदेव का वो घी आता है, बाबा रामदेव का गाय का जब आप शुद्ध घी लेने जाएंगे तो 700-800 रुपए का पैकेट मिल जाता है, उसमें कहते हैं कि गाय का शुद्ध घी है। अब 1 लीटर का गाय का दूध आप खरीदने जाएंगे तो वो 47 रुपया का लीटर मिलता है। वैसे तो मैं बच्चे के लिए बाबा रामदेव का कभी दूध नहीं लाता हूँ, हमेशा अमूल का ही लाता हूँ, अब चाहे जो भी हो, रांगरेट जैसे भी हो। अब अगर आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 800 रुपए का आप दूध खरीद लीजिए घर पे, 800 रुपए का गाय का दूध खरीद लीजिए या 1000 रुपया खरीद कर रख लीजिए, और 1000 रुपए का जो दूध खरीद कर लाते हैं उसमें से 1 केजी घी निकालने का प्रयास करिए, वो कभी नहीं निकलेगा। उतना घी निकालने के लिए आपको कम से कम आपको 1500-2000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा दूध खरीदने के लिए, तब जाकर के उतना घी निकलेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आदमी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका यही काम है, फसाई इसी चीज को रेगुलेट करता है कि भाई वास्तव में जो चीजें आ रही हैं पब्लिक के पास आ रही हैं, सेफ्टी है कि नहीं है। तो हाँ, तो उसमें मैं बता दूं, तो उस केस में जो जो फसाई ने सैंपलिंग कराया था पूरे भारत में फेल हो गया था, और बवाल हो गया था कि आप दूध के नाम पे यूरिया सप्लाई करा रहे हैं, आप
तो उसको लेकर के अच्युतानंद तीरथ ने केस फाइल कर दिया। सिर्फ अच्युतानंद तीरथ एक नहीं है, अच्युतानंद तीरथ एंड अदर्स केस का नाम है। कम से कम 20-25 एनजीओ ने मिलकर के, इस तरह के लोगों ने, पब्लिक स्पिरिटेड लोगों ने मिलकर एक केस फाइल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो यही आर्गुमेंट हुआ कि आप दूध पिलाने के नाम पर लोगों को यूरिया पिला रहे हैं, इस तरह की बहुत गलत चीजें हैं। क्योंकि और उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, जो अपना आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने कहा कि फसाई के लेबोरेटरी में ये सारी चीजें निकल कर के आई हैं, ये इसका मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना भी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में एक लंबा चौड़ा गाइडलाइन भी दिया कि इस तरह का वो चीजें रुकनी चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। ये फसाई का एक काम है। तीसरा काम क्या है कि लेबोरेटरी स्टेब्लिश करना, उसमें इसका सैंपलिंग टेस्ट कराना, और अगर गलत पाया जाता है तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। ऑफकोर्स एक्शन तो लिया ही जाएगा, एक काम है। लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा, ये तो एक कंज्यूमर का मैटर है, इससे इस वोट बैंक नहीं बनता है। अब वोट बैंक न होने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है? ये बना हुआ है 2006 का एक्ट। 2006 से लेकर के 17 तक का मैं कंडीशन बता दूं, किसी पार्टी की बात नहीं है। जो वोट बैंक जिससे मिलता है उसी पर काम होता है, जिसका वोट बैंक नहीं मिलता है उस पर काम नहीं होता है। 2017 में फसाई की रिपोर्ट आई, मतलब कैग की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट आई है, 2017 की रिपोर्ट आई। 2017 की रिपोर्ट में सीएजी ने कहा है कि 5-6 पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया है फसाई को, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी है, उसने कहा, कैग ने, यहाँ पे समरी लिखा हूं, तुम लोग बाद में देख भी सकते हो, और डिटेल भी है कि तुम चाहो तो ओरिजिनल भी जाकर पढ़ सकते हो। भाई देखो, जो है सो है, ये कहीं है मेरा क्या गुरु, ये है कैग की रिपोर्ट है। देखो, इस कैग का रिपोर्ट है, समरी कैग का रिपोर्ट है। अगर किसी को पढ़ना है तो गवर्नमेंट का एक वो आता है, पीआरएस इंडिया, एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होता है। इस पे जो आर्टिकल होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी नया ऑर्डिनेंस आ रहा है, एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट का, कोई भी XYZ हो, अगर तुम्हें जानकारी चाहिए, एकदम प्राइमा फेसाई जानकारी चाहिए, एक्यूरेट परफेक्ट जानकारी चाहिए, तो इस पे तुम्हें हमेशा मिल जाएगा। पीआरएस स्पेस जो भी होता है, इंडिया डाटा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही अच्छा होता है, मैं कंटिन्यू इसको पढ़ता हूँ। तो इसमें इसकी समरी दिया गया था, इसी वेबसाइट पर इसकी समरी है। इसकी समरी में कहा गया था, लेबोरेटरी की बात कर रहा हूँ, कैग ने कहा कि ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि फसाई की 72 लेबोरेटरी हैं। कितनी लेबोरेटरी भारत में काम कर रही हैं? 72 लेबोरेटरी हैं, और 72 लेबोरेटरी में से 65 लेबोरेटरी के पास काम करने का स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब रिकॉग्निशन तो है, लेकिन काम करने के पास उनके पास फैसिलिटी नहीं है, या मैन पावर नहीं है। मतलब कहने का मतलब था कि 72 लेबोरेटरी में से सिर्फ 7 लेबोरेटरी ठीक से काम कर रही हैं, बाकी सारी लेबोरेटरी फेल है। ये इसका बात किया गया था। और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मैं पहले ही बता दिया हूँ, इस बात को लेकर के क्रिटिसाइज किया था। अब अभी 23 मेंबर हैं। कितने मेंबर है फसाई के? 23 मेंबर हैं। 23 मेंबर में से सिर्फ 8 मेंबर काम कर रहे हैं। 23 मेंबर में 8 मेंबर काम कर रहे हैं। अब 23 में से 8 निकाल दिए, 15 मेंबर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो 15 मेंबर अभी तक अपॉइंट ही नहीं हुए। ये तो हाईएस्ट बॉडी की बात है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी पे जो ऑफिसर हैं, जैसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, या फूड इंस्पेक्टर है, बाकी जो हैं, वहां पर क्या आ रही है कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है, वहां पे कोई अपॉइंटमेंट हो ही नहीं रहा। तो ग्राउंड रियलिटी पे कंडीशन और खराब है। तो इसने कहा था कि टोटली फसाई जो है, मतलब जो एक्ट है, अपने काम को परफॉर्म करने में पूरी तरह से फेल हो रहा है। और फेल होने का रीजन क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे 72 लेबोरेटरी में से 65 काम नहीं कर रही है, मतलब स्टैंडर्ड में नहीं है, सिर्फ 7 स्टैंडर्ड में आती हैं। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और एडवाइस दिया गया था कि आप वैकेंसी निकालिए, और वैकेंसी निकाल करके आप इसको फिलअप करिए। एक कंडीशन में 2017 की बता रहा हूँ, अब क्या कंडीशन हुआ होगा भगवान में भरोसे है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, रिसोर्स है ही नहीं।
तो यहाँ पर प्रॉपर ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन इसका जहां तक होने की बात है, इसका हो ही नहीं पा रहा है। इसमें फिर कहा गया था इसी बात को लेकर के, फसाई लाइसेंस का भी रूल रेगुलेशन बनाती है। कहा गया था कि फसाई ने ऐसे लाइसेंस और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं जिनमें कि 50% तो विदाउट डाटा के ही लाइसेंस इशू कर दिया गया है। क्योंकि फसाई क्या करती है, फसाई डायरेक्ट तो लाइसेंस नहीं देती है, लेकिन फसाई क्या करती है, उसके रूल रेगुलेशन बनाती है कि जैसे आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं फूड के मामले में, या फूड की कोई दुकानें खोलना चाहते हैं, आप अथराइज नहीं है जब तक कि फसाई से आपको लाइसेंस न मिल जाए। इस एक्ट के आने के बाद यही चीज हुई है। इस एक्ट के आने के बाद विदाउट परमिशन ऑफ द फसाई कोई भी व्यक्ति अपना फूड का बिजनेस नहीं कर सकता। अब फूड का बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लेना पड़ेगा तो फसाई लाइसेंस कैसे दे रही है? तो फसाई तो मान हाइएस्ट बॉडी हो गई, फसाई के नीचे जो काम करेगा उसको तो मेन मानेंगे कि आप फसाई के अंडर में काम कर रहा है। तो कहा इसमें कैग ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि 50% केसेस में विदाउट डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किए हुए, विदाउट डॉक्यूमेंट को चेक किए हुए ही लाइसेंस दे दिए जा रहे हैं। मतलब कि अगर ऑफिस में आपका जुगाड़ है, पैसा है, तो आप पैसा दीजिए, लाइसेंस लेकर चले जाइए, आपका एक्सपर्टाइजेशन है, क्वालिटी है, कंडीशन कुछ भी मतलब नहीं है। ये इसका एक अलग प्रॉब्लम है। तो कोर्ट इसमें इस बात को लेकर के भी हम आपको रखना होगा, क्योंकि देखो जब तुम सेमेस्टर एग्जाम में लिखोगे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लिखोगे, आपको नॉलेज परफेक्ट तभी माना जाता है जब उसके एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी 2 लाइन कह दो। 2 लाइन कहने के लिए तुम बहुत अच्छा तरीका है कि तुम लिख सकते हो कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट 19 दिसंबर 2017 को सबमिट किया गया था, 5 पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया है और इस पॉइंट को लेकर के हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ा देंगे, देखो पढ़ाने का क्या होता है ना, पढ़ाने का तुम सब टैलेंटेड आदमी हो, बस तुम सबको एक गाइडलाइन पकड़ा देना कि भाई सोचने का तरीका यही है, इसी पैटर्न पर सोच करके पूरे बेरेट को तुम समझना है। बस ऐसा थोड़ी बच्चा तुम्हें एक एक लाइन रटवाएंगे, ऐसे नहीं होता है। एक तरीका बस बता देता हूँ और इसी तरीके से सारा काम तुम सब सारा लाभ पढ़ोगे। कम टू दीज पॉइंट्स। ओके, बहुत सारी कहानी हो गई, अब कुछ टू द पॉइंट पर भी आ जाए, क्योंकि क्लास भी खत्म हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। अब आते हैं पॉइंट टू द पॉइंट। अब क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे सोच लेना जैसे वैसे तुम लोग को याद करना है। पहला पॉइंट क्या है? रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग इट्स सेल्फ ड्यूटी। ड्यूटी जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हो ना कि राइट एंड ड्यूटी, तो वही है ड्यूटी। इट्स सेल्फ ड्यूटी ऑफ द फूड अथॉरिटी। व्हाट इज द ड्यूटी? Duty is that to regulate, to regulate and monitor. What regulate? What monitor? Point is that manufacturing, processing, distribution, sale. These are the domestic matter, as well as import. Import means from the foreign country. Far from the export, import. That is talks about the import. It says that it will regulate and monitor manufacturing, processing, distribution, sale, import of which of goods of food. Sorry, of foods. Why? What is the purpose of regulating and monitoring? Purpose of regulating and monitoring is that nothing except to ensure safe and wholesome food. Why? What is the duty? Regulate and monitor. What regulate? Manufacturing, processing, distribution, sale and imports of goods. Why? To ensure safe and wholesome goods. Come to the other points. Without prejudice to the provisions of subsection 1, the food authority may. Food authority may. It means here this is the word may and here this is the word shall. Okay. Class 1 shall, class 2 may. Regarding the may, the food authority may by regulation specify. What is specify? Standards and guidelines in relation to articles of foods. Standards and guidelines in relation to articles of foods, and specifying the appropriate system for enforcing various standards notified under the Act.
कह रहा है कि एक एप्रोप्रिएट सिस्टम भी डेवलप करेगा। अब डेवलप कैसे करेगा, कि क्यों डेवलप करेगा, कहेगा कि जो लॉ है, जो नोटिफाइड कर रहे हैं, जो लॉ है वास्तव में ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एप्रोप्रिएट सिस्टम डेवलप कर सकता है। अब ये डेवलप कैसे करता है, फसाई अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है और फसाई अपने आप में वैकेंसी निकालती है। मैं हमेशा कह रहा हूँ, अभी इसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है फसाई का, इसका मतलब क्या है, उस जब अपॉइंट करेगी तो वही एक सिस्टम डेवलप करेगी ना, एप्रोप्रिएट सिस्टम डेवलप करेगी जिससे कि लॉ को इन्फोर्स कराया जा सके। तो लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए तो ह्यूमन बीइंग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। दैट्स व्हाई इट सेज दैट इट मे रेगुलेट, it may develop appropriate system. Why it may develop appropriate system? For enforcing the various laws. And the food authority may by regulation specify the limit for use of. Specify the limit for use of. What is the limit of use of? Use of food additives. Additives. Additives का मतलब होता है ऐड, होता है ना, ऐड करना। ऐड मीन समथिंग ऐड कर देना, कुछ जोड़ देना। फूड एडिटिव्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए फूड है, अब फूड के साथ कुछ न कुछ ऐड कर दोगे, तो कई बार क्या होता है, जो ओरिजिनल जो चीज होती है जिसके नाम पर बिकता है वो 10 ग्राम है, और जो ऐड होता है उसको तुम 100 ग्राम डाल दोगे, नाम रख दोगे ओरिजिनल का। तो क्या होता है कि फूड एडिटिव से 2 पॉइंट आते हैं। पहले से कि जो क्वांटिटी होती है फूड की वो बढ़ जाती है, और कई मामले में फूड एडिटिव से उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल, हम पार्ले जी का बिस्किट खाते हैं, पार्ले जी का बिस्किट में क्या होता है, ग्रेन होता है, ग्रेन ही होता है ना मेन कंपोनेंट उसका। तो हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ ग्रेन उसका मेन कंपोनेंट है। लेकिन अब कहो कि ग्रेन का तुम दे दो खाने के लिए, तो खाने में मजा आएगा, नहीं मजा आएगा। उसके साथ कुछ ऐड कर दिया जाता है, समथिंग जो भी होता है कंपोनेंट ऐड कर दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि जो फूड में एडिट होता है उसके लिमिट को स्पेसिफाई कर देता है कि अगर ए फूड बनाओगे तो इसका इतना क्वांटिटी होगा, इससे ज्यादा तुम इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। मतलब एक गाइडलाइन इस तरह का दे सकता है कि इसके लिए फूड एडिटिव्स के लिए दे सकता है। क्राफ्ट कंटामिनेंट्स, क्राफ्ट कंटामिनेंट्स कंटामिनेट हो जाता है कुछ मैटर में, इसको थोड़ा सा तुम सर्च कर लेना। एक हमने गूगल में हमने खुद 4-5 वर्ड सर्च किया, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, ये सबसे कंट्रोवर्शियल टर्म है इंटरनेशनल लॉ में। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड में किलिंग ऑफ, साइड में किलिंग होता ही है, पेस्टिसाइड में किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे मोटे कीटाणु कीटाणु जो फसल उस समय लग जाते हैं, जो किसान आदमी अच्छी तरह से जानता है, उस पेस्टिसाइड को, उस जो कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या जो भी होते हैं, उनको मारने के लिए दवा यूज होती है। उस दवा को मोटा मोटी भाषा में क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं। अब रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, जो चीज खर्च होने के बाद बच जाए उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। अब पेस्टिसाइड रेजिड्यू का मतलब क्या है, व्हाट इज द कंबाइंड मीनिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू। कंबाइंड रीडिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी गेहूं की फसल है, अब उसमें कीड़े लग गए, अब हमने उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड यूज कर दिया। पेस्टिसाइड तो यूज कर दिया, पेस्टिसाइड की अलग अलग क्वालिटी भी आ रही है, यूज कर दिया। अब वो क्या करेगा, 2 तरह के काम होते हैं, एक तो ऑन द स्पॉट मार देगा, और कुछ ऐसी दवा आ रही हैं कि जो गेहूं के साथ मिल जाएंगी, उनके पौधों के साथ मिल जाएंगी, और फ्यूचर में भी कोई जो कीटाणु टाड़ू हैं उसमें नहीं लगेंगे। तो उसका क्या होता है कि वो पेस्टिसाइड उसके उत्पादन के बाद भी वीट में वो मिक्स कर जाते हैं। मिक्स कर जाने का मतलब ये होता है वो इस तरह से मिक्स कर जाते हैं कि जब आप आटा बनाते हो, मान लो आटा के बाद रोटी बनाते हो, उसमें भी उसकी मात्रा पहुंच जाती है, उस पेस्टिसाइड की मात्रा वहां तक तुम्हारे किचन तक पहुंच जाती है। तो मतलब ये हुआ कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू का मतलब हुआ कि वे पेस्टिसाइड जो फसल के दौरान ही फसल को बचाने के लिए यूज किया जाता है, और उसे कुछ मात्रा कहीं न कहीं उस फसल के साथ घुल मिल जाती है, उसके जल पानी जो भी मिल जाती है, और जब हम फाइनली जब उसको फीड करते, जब खाते हैं, तो उसमें भी पेस्टिसाइड की मात्रा पहुंच जाती है।
अब दुनिया में हो क्या रहा है, इसमें पेस्टिसाइड यूज होता है तो इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और आसपास के जितने जो जो और इन्वायरमेंट में जीव जंतु रहते हैं छोटे छोटे, वो भी खत्म हो जाते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, बहुत सारी चीजें इस तरह की आती हैं। तो इसीलिए दुनिया में हमेशा कंट्रोवर्सी चल रही है। अब डेवलप्ड कंट्री वाले क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री पर दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं तुम पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करोगे। अब डेवलपिंग कंट्री कह रहा है कि अगर हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, अब तरह तरह के बीमारी लग रही है फसलों में, वो ऑलरेडी अगर खत्म हो जाएंगी तो हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है, तो हमारे लिए पेस्टिसाइड एक मजबूरी है। अब इस तरह से जो वर्ल्ड ट्रेड चल रहा है, इस तरह की जो मैटर आता है, इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू कितने मात्रा तक अलाउ होगा, ठीक ना। तो इसको देख लेना। एक है कि रेजिड्यू ऑफ वेटरनरी ड्रग्स। रेजिड्यू ऑफ वेटरनरी ड्रग्स का भी बहुत बड़ा रोल है आजकल। वेटरनरी मतलब क्या होता है कि जीव जंतु होता है, मतलब गाय भैंस बकरी भेड़, ये सब वेटरनरी में आते हैं, उनके ऊपर जो ड्रग यूज किया जाता है और वह ड्रग रेजिड्यू कर जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, अभी क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए गाय है भैंस है, अब हो रहा है कंज्यूमरिज्म का भावना बढ़ गई है। अब लोगों का इमोशन से नहीं पैसे से काम हो रहा है। अब पैसे में कैसे काम हो रहा है, अब कर क्या रहा है, क्योंकि अब ट्रैक्टर आ गए, बैल की जरूरत है नहीं, और वैसे भी भैंस के मामले में भी भैंसा पाड़ा उड़ा का जरूरत है नहीं, तो कर क्या रहा है सब कि उससे दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगा देता है। जैसे मान लीजिए कि होता है ना कि देखो माँ तो माँ होती है, चाहे गाय की माँ हो चाहे हमारी माँ हो, माँ तो माँ ही होती है। तो वो माँ क्या करती है कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं बचा लेती है, वो बचा लेती है एकदम 100%। लेकिन इस तरह की जो जो दवा आ गई है, वो इंजेक्शन गाय भैंस को मार देने के बाद उसकी वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो होता क्या है कि दूध जो होता है वो पूरा का पूरा दूध निकल जाता है, और दूध नहीं भी निकलता, थोड़ा बहुत उसके और भी कंपोनेंट होते हैं, वो भी दूध के फॉर्म में ही वो बाहर आ जाते हैं। तो जो तुम इंजेक्शन दे करके दूध निकाले हो, उस इंजेक्शन की वजह से दूध निकला है, तो कुछ ना कुछ उसकी क्वांटिटी उस दूध में मिल जा रही है। और उस क्वांटिटी जब दूध में मिल गई, तो जब दूध जब तुम पियोगे, तो जो इंजेक्शन लगा कर गाय का दूध तुम उतारे थे, भैंस का दूध उतारे थे, निकाले थे, वही इंजेक्शन जो है तुम्हारे शरीर के अंदर भी आएगा। तो वो क्या होते हैं, डेंजरस होता है, क्योंकि भाई किसी के बॉडी को पूरी, आप एकमात्र इंजेक्शन लगा देते हो कि पूरी उसकी बॉडी खुल जा रही है, उसका बॉडी पे कंट्रोलिंग पावर ही नहीं रह जाता है, तभी तो सारे दूध बाहर आ जा रहे हैं। और उस इस तरह के जब ड्रग यूज करके जब निकालोगे, तो जब फाइनली जब तुम्हारे पास आएगा पीने के लिए, तो कुछ तुम भी इंजॉय करोगे ही। तो वो बहुत ही ह्यूमन बींग पर खतरनाक हो रहा है। ह्यूमन बींग पर तो खतरनाक है ही, जानवरों पर तो खतरनाक है, साथ साथ में ह्यूमन बींग का भी है। इस पर भी फसाई रेगुलेशन लगा रहा है, और फसाई कई गाइडलाइन आ रही है कि कौन सी दवा एनिमल पर यूज होगी, कौन सी दवा एनिमल पर यूज नहीं होगी। अगर बाई चांस आप मिल्क का पाउडर है, मिल्क का पैकेट है, उसमें उसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिससे कि आप इंजेक्शन लगा करके दूध निकाल ले रहे हो, उसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो उसको बैन कर दिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं, रेजिड्यूज ऑफ वेटरनरी ड्रग्स, मतलब कि जानवरों पर यूज होने वाले ड्रग्स की मात्रा जो फाइनली बच जाती है, जो कंज्यूमर के पास तक पहुंचती है, उसके मामले में रूल रेगुलेशन बनाया जा सकता है, और ये फिक्स किया जा सकता है कितने मात्रा तक ये अलाउ किया जाए। अगर तुम्हारा क्लास हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लास है तो कहो 5 मिनट ले लें। किसे क्लास है? सर क्लास है पर 5 मिनट ले लो सर। सर क्लास है, 5 मिनट ले लो पर। चलो ठीक है। अभी लिंक नहीं आया सर। अच्छा, अब उसमें हैवी मीटर्स है, प्रोसेसिंग एड्स है, माइक्रोटॉक्सिन है, एंटीबायोटिक्स है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस है, इरिडेशन ऑफ फूड्स है। ये लास्ट पॉइंट को हमने गूगल पे सर्च किया था। एक्चुअली क्या है यार, एकदम नया नया एक्ट मिला हुआ पढ़ाने को, और थोड़ा सा तो पहली बार जब कोई भी काम होता है तो डिफिकल्ट होता ही है। मैं मानता हूँ कि आदमी उतना लय नहीं पकड़ पाता है। तो हमने इरिडेशन ऑफ फूड पर सर्च किया, गूगल पे डाला कि वास्तव में इरिडेशन ऑफ फूड क्या है। इरिडेशन ऑफ फूड का एक्चुअली क्या होता है कि एक रेडिएशन ऑफ फूड, इरिडेशन ऑफ फूड रेडिएशन ऑफ फूड में बहुत ज्यादा लिंक है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम
अभी मैंगो है, भारत से मैंगो सप्लाई होता है, फॉरेन की कई कंट्री में सप्लाई होता है, तो कई बार उसे बैन कर देता है। क्यों बैन कर देता है? अब होता क्या है कि अब हमारे यहाँ के बहुत सारे मतलब कीटाणु हैं, जीव जंतु हैं, अगर वो सही से नहीं पहुंचेंगे तो इंडिया के जो कीटाणु हैं, जीव जंतु पहुंच जाएंगे फॉरेन, और वहां के लोगों को परेशान कर देंगे। तो करता क्या है कि वहीं पे चेक होता है। चेक होने का मेथड क्या करता है सर, वो चेक कर लेता है कि छोटे छोटे जो इन्फेक्शन के हैं वो इसमें तो फूड में तो नहीं मिले हुए हैं ना, तो कंपनियां क्या करती हैं, उसको सप्लाई करने से पहले उसका रेडिएशन कर देती हैं। इरिडेशन कर देती है। इरिडेशन में क्या होता है कि उसको एक ऐसे मतलब मशीन आ गई है पूरे वर्ल्ड में, उसको फूड को वहां पे उसके अंदर रखते ही उसके जो अदर सब्सटेंस, जो मतलब अदर छोटे मोटे कीटाणु हैं या जो भी हो, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। मतलब मिला जुला करके इरिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से फूड का प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है? फूड का प्यूरिफिकेशन होता है। और बाकी चीजें तो गूगल में डालकर सर्च कर लोगे, तुम बेटर पोजीशन में रहोगे। मैंने चित्र तो देखा है, सब ऐसे ही करता है सब। क्योंकि हम लोग जैसे आता है ना कि जैसे अभी सेव खरीदने जाओगे, अभी मार्केट में सेव का दाम है 70 रुपया, 80 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, लेकिन वही जो फॉरेन से सेव आते हैं उसके दाम है 250, 300, 400 रुपया किलो है। अब वो, अब तुम कहोगे सेव तो सेव होता है, चाहे यहाँ का सेव हो चाहे वो कहीं और का सेव हो, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें अंतर आती हैं, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगला कंडीशन है द मैकेनिज्म एंड गाइडलाइंस फॉर एक्रीडेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस बॉडीज इंगेज इन दिस। अगला कह रहा है कि जो बॉडीज इन्वॉल्व हैं, जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। उनको क्या करेंगे? एक्रीडेशन ऑफ सर्टिफिकेट देंगे, जिससे कि उनको क्वालिटी का पता चल सके कि कौन बॉडी क्या काम करे, कितना अच्छा काम करे, कितना खराब काम कर रही है। अगर खराब ज्यादा खराब काम करे, 2 बार 3 बार फेल हो गए, तो उसको बंद कर देंगे। जैसे क्या होता है, अब यूनिवर्सिटियों को क्या होता है, नैक होता है। नैक का क्या होता है? नैक या नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन, क्या है? एंड एक्रीडेशन काउंसिल। नैक 1994 में बना था, बॉडी बनी हुई थी। यह बॉडी यूनिवर्सिटी कॉलेजों को नैक का टैग देती है। आप में ए है, A+ है, बी है, B+ है, तो अगर अगर आपका ए है तो बहुत बढ़िया है, बी है तो थोड़ा सा डाउन है। इस तरह के हिसाब से अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं IIT NIT करने के लिए, इसका बहुत वैल्यू होता है कि आपका जिस इंस्टीट्यूशन से आप किए हैं उसका ग्रेड क्या था। सरकारी वालों को सिर्फ डिग्री से मतलब है, तो इसके यही आता है कि एग्रेडेशन ऑफ सर्टिफिकेट देगा ये, उसके लिए रूल रेगुलेशन बना सकता है। इंपोर्ट इन इंडिया, अगर भारत में कोई भी वस्तु अगर आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, तो उसके लिए रूल रेगुलेशन बना सकता है। ये भी चेक करेगा कि भाई भारत में कोई गुड्स आ गए बाहर से, उसको हम अलाउ करें कि रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह की बीमारी तो दूसरे देश से भारत में भी आ सकती है। इसका ये काम करता है। ये एक्रीडेशन ऑफ लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज को भी एक्रीडेशन देता है। इसीलिए कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 72 में से 65 लेबोरेटरीज जो हैं विदाउट एग्रीडेशन के काम कर रही हैं। उनको कोई एग्रीडेशन अभी तक नहीं मिला, एक्रीडेशन नहीं मिला हुआ है, फिर भी वो काम कर रही हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जब कैग की रिपोर्ट में पढ़ोगे, इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कैग ने। कैग का यही कहना है कि 72 में से 65 लेबोरेटरी जो है विदाउट एग्रीडेशन के काम कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कोर्स इसको पढ़ लोगे। सर्वे ऑफ इन्फोर्समेंट, यह सर्वे भी कराती रहेगी टाइम टू टाइम पर कि जो हम रूल रेगुलेशन बना रहे हैं वास्तव में देश में प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से पब्लिक का फीडबैक लेगी कि हाँ इस प्रॉपर वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फूड लेबलिंग का एक पॉइंट है कि फूड लेबलिंग का मतलब ये हुआ कि जो फूड के पैकेट आते हैं उस पर एक लेबल होगा। लेबल में लेबलिंग में चिपका दिया जाएगा, लेबल कर दिया जाएगा। उसमें सारा डिटेल रहता है, सब कुछ डिटेल रहता है, कितना न्यूट्रिशन है, कौन कंपनी बनाई है, फसाई ने इसको अलाउ किया है कि नहीं किया है, कब तक एक्सपायरी डेट है, क्या क्या न्यूट्रिशन है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए एक कानून बना सकती है, रूल बना सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है। फूड लेवलिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग क्लेम ऑन हेल्थ, इसका हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, न्यूट्रिशन, स्पेशल
डायरेक्टरी यूज लाइक दिस। रिस्क क्या होगा, अब रिस्क के बाद कल मैं डिस्कस करूंगा, मैं भी दबाव में हूँ, टाइम तुम लोग का नहीं है, कल से पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू।